یہ بتائیے گا کافی دیر ہو چکی ہے، کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، بلکہ ایک دن گزر چکا ہے، یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی رابطہ شابطہ ہوا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ آگے اعلیٰ سطح کے اوپر کوئی چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی وہ تو چونکہ خان صاحب نے کلیئر انسٹرکشن دیے ہیں کہ جو ہے یا ایسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صحیح صاحب یا اعلیٰ مناصر صاحب کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کوئی رابطہ نہ کیا ہے، نہ ہمارا رابطہ ہے اور نہ کر سکتے ہیں، اور باقی ان کے ساتھ اگر ہوا ہوگا تو ان کو پتا ہوگا اس حوالے مجھے طور پہ وہ تو ایک دن سے محصور ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ کو تالے لگے ہوئے ہیں، ان آؤٹ بند ہے، کھانا پینا بند ہے، ان کی موبائل بیٹریاں بند ہونے والی ہیں، تو کیسے رابطے ہوں گے پھر؟ دیکھیں جی ہم نے تو اپنا جو پلان جو ہمارے بس میں ہے اور جتنی ہماری ذمہ داری ہے اس وقت جو ہماری حیثیت ہے پارٹی میں، اس کے مطابق ڈی خان کل سے بند ہے ابھی تک، بکھر کا جو پل ہے، آج جو ہمارا لنک ہے ود ڈی خان کا میاں والی جو پنجاب سے دوسرا والا، اس کو بھی آج بند کر دیا ہے ابھی، اور سی پیک جو ہے ہمارا وہ بھی اکلا پہ ہم بند کر رہے ہیں، اس کے علاوہ خوشحال کار ہمارا بند ہے، سوا بھی ہمارا بند ہے، تو اس لیے ہم نے تو پریشر بلڈ اپ اس لیے شروع کر دیا اور کیا ہے، یہاں بھی بیٹھ کر ادھر بھی تو پارٹی کے احکامات تو یہاں کے تھے، لیکن وہاں پر بھی ہم نے اس لیے کیا کہ جب تک آپ پریشر بلڈ اپ نہیں کریں گے تب تک آپ کے ساتھ کوئی بھی بات چیت یا آپ کے کوئی آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، یہ دنیا کا ایک یونیورسل ایک اصول ہے، تو انشاءاللہ وہ بلڈ اپ ہوا ہے اور انشاءاللہ ان کو اگلے جب تک ہم نے تو اٹھنا نہیں ہے یہاں سے، اور اس کو مزید بھی جس طرح میں نے بتایا کہ آج صرف ڈی خان میں 2 آرٹریز کو ابھی بند کر دی ہے ہم نے، وہ پریشر ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ رات کو اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، خان صاحب کو ہسپتال بھی لایا جا رہا تھا، لیکن سیکیورٹی کے بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے خان صاحب کو نہیں لایا گیا۔ دیکھیں جی سیکیورٹی کا تو بالکل ایک جنون ایشو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ایشو ہے وہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور باقی جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس وقت، تو اس حوالے سے کوئی بھی کسی طرح کا کوئی ایڈونچر پاکستان میں اللہ معاف کرے کر سکتا ہے پاکستان کو نقصان دینے کے لیے، اس کے اگر اس کے لیے بھی کنسرن ہے تو بالکل ہمیں وہ کنسرن ہمارا بھی ہے کہ خان صاحب کی سیکورٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ان کی صحت بھی اس سے زیادہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو فیسلٹی دینی ہے، جو ٹریٹمنٹ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس طریقے سے، تو وہ انشاءاللہ جلد سے جلد کو دینی پڑے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 24 گھنٹے تک یہ سروائیو کر جائے گا، کیونکہ پریشر بلڈ اپ کر کے انشاءاللہ ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کر لیں گے، اور ساتھ میں ہم انشاءاللہ بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں اس چیز کو، اور ہم جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اس کو بڑھائیں گے، صحیح ہٹیں گے نہیں اس سے۔ علی امین صاحب، آپ رات کو بھی موجود تھے، صبح کی اذانیں بھی یہاں پہ گزاری، ابھی تک بھی یہاں پہ قائم ہے، باقی لیڈرشپ جو ہے وہ باقی کابینہ صوبائی کابینہ وہ اس وقت تک یہاں پہ ابھی تک موجود نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ ایسا نہیں ہے جی، موجود تو ہیں یہاں پر، آن اینڈ آف ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے، وہ میرے ساتھ بھی منسٹر تھا، یہ میرے ساتھ بھی تابی بھی ہے، یہ چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے ساتھ منسٹر صاحب بھی نہیں ہے، یہ بھی صاحب نہیں ہے، میں نے وہاں سے اٹھا کے بھی میرے ساتھ منسٹر سے پہلے کسی بات ہم کر رہے تھے ڈسکشن پرانی، تو ان کو میں نے وہاں سے بلایا، تو موجود ضرور ہے، آن اینڈ آف آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب کون کسی دیر بیٹھا نہیں بیٹھا اب یہ سوالات ہم مجھ سے نہ کریں، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، اور میرا اس سے مقابلہ کر کے بھی ہمارا کام نہیں ہے، جس کا اتنا اسٹیمنا ہے اسی حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی بیٹھے رہیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب، کل پاکستان اور انڈیا کا T20 کرکٹ میچ ہو رہا ہے، آپ کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا میچ؟ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں میری محبت تو پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن یہ خان صاحب کے مسئلے کے بعد میں آپ کو ریئلی بتاؤں کہ میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں، لیکن مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا میچ کس سے ہے، تو ہم اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کا جو ہے ہمارا کنسرن ہے ہیلتھ کا، میں حرفیاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میچ ہے، لیکن میں خود کرکٹ کا پلیئر تھا نہیں، ابھی بھی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میچ ہے، تو مجھے یہ پتہ نہیں کس سے میچ ہے، لیکن آبویسلی پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم پاکستان کے ہی ساتھ ہیں، اس میں تو کوئی دوہری رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے جو خان صاحب والا یہ چیز سامنے آئی ہے اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا علی امین صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کافی زیادہ مخالف آوازیں سہیل افریدی کے خلاف KP سے اٹھ رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب ان کی ذمہ داری واپس لیتے اور دوبارہ آپ کو ذمہ داریاں سونپتے تو آپ تیار ہیں خان صاحب کے حکم ماننے کے لیے؟ دیکھیں جی، اب خان صاحب ہمارے لیڈر بھی ہیں، کیپٹن بھی ہے ہماری ٹیم کے، تو وہ اگر کسی بھی پلیئر کو جہاں پہ بھی پلیس کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں تو پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے اس کی تو پیچھے کسی کو ہٹنا ہی نہیں چاہیے، اور ہٹنا میرے خیال میں بالکل بزدلی ہے یا بیک آؤٹ کرنا ہے، تو یہ تو ہر ایک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی خان صاحب حکم کریں
तो उसको मनोवन उसको कबूल इसलिए करना चाहिए कि खान साहब समझते हैं कि इस वक्त इस प्लेयर की मुझे ज़रूरत है, तो हमारा तो एज अ प्लेयर काम यही है कि जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े तो खान साहब हमसे वो काम लें। सर आज आपका दूसरा दिन है यहाँ पर बैठे हुए, उस तरह से प्रेशर बिल्ड नज़र नहीं आ रहा हुकूमत के ऊपर, आगे क्या हिकमत अमली है, क्या प्लान है आपका? देखिए जी, बात यह है कि हमेशा जब प्रेशर होता है तो उसी में ही आपका जो फैसिलिटी भी आपको मिलती है, और आप देखेंगे खान साहब की मुलाकातें भी होती रही हैं, मेरी बेशक नहीं हुई, जिससे मुझे नुकसान भी बहुत हुआ है, लेकिन जो मेरी मंजी ठोक रहे थे उनकी तबाह तब हुई हैं। मैं खुश हूँ इस बात में, चलो खान साहब रास्ते में थे, कम से कम कोई गलती फीड कर रहा था, लेकिन खान साहब की इतलाह तो आ रही थी, पता न चल रहा था, और वो मतलब आइसोलेशन में भी नहीं थे, टीवी भी था उनके पास, अखबार भी था उनके पास, और रसाई भी थी, मुलाकातें भी थी। उसके बाद अब देखेंगे फिर अभी ऐसा माहौल बन गया है कि मुलाकातें भी, रिहाई के बाद अब मुलाकातें भी बंद हो गई, और अब इलाज के लिए भी हम जो है वो भी धरना दे रहे हैं और प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये कमजोरी है कहाँ पे देख कि ये प्रेशर हमारा कम हुआ है, तो हमें ये हालात देखने पड़ रहे हैं खान साहब को, और हमें प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। और जो भी इस वक्त जिम्मेदारान हैं, चाहे पॉलिटिकल कमेटी है या इसके साथ साथ जिसके पास इस वक्त जिम्मेदारी वाले उहदे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि नई जेल बन रही है, उसमें खान उनका साहब काम बनता है कि वो दोबारा प्रेशर को बिल्डअप करें ताकि हमारी टर्म एंड कंडीशन पे और खान साहब को फैसिलिटी के हवाले से जब तक इनको ये अंदाजा और ये खौफ नहीं होगा कि इनकी जड़ें जो है वो किसी वक्त भी हम हिला सकते हैं, तो ये हरदर्मी करेंगे, और ये हरदर्मी आपके सामने है जो इन्होंने की है। सर हमने देखा आप जब सीएम थे तो आप काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी किया, अभी उस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू है, तो प्रेशर बिल्डनेस होता नजर नहीं आ रहा, हुकूमत पे कोई असर नहीं आ रहा। मैं तो ये मान रहा हूँ कि हमारी कमजोरी है और हमें करना चाहिए और हमें बिल्डअप करना चाहिए इस चीज़ को। जी आप सवाल जी ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि खान साहब कहीं नहीं जाएंगे, उनके लिए एक नई जेल बनाई जा रही है इस्लामाबाद में, जिसमें आंखों का इलाज, तमाम तर सेहत की सहूलियात दी जाएंगी, ऐसी जेलें हम बना रहे हैं। देखिए जी, अभी तो खान साहब को इन्होंने फौरन इलाज चाहिए, ये जेल तो बहुत अरसे से बन रही है, इस पर 2 हफ्ते गुजर गई है, तीसरी हुकूमत है। हमारे टाइम भी ये बन रही थी जब हम फेडरल गवर्नमेंट में थे, और हमारी कोशिश थी कंप्लीट हो जाए। वो तो जब भी कंप्लीट होती है अच्छी बात है कि जो भी कैदी हो जहाँ पर भी हो, अगर अच्छी ऐसी जेल बन जाती है, अल्लाह खान साहब को इतना ना रखे अंदर के उस जेल के बनने तक, और वो सहूलियात हम खान साहब के लिए वेट करें, लेकिन जो भी कैदी वहाँ पे हो तो अच्छी बात है। अगर इतनी बड़ी सहूलियात वाली जेल बना रहे हैं कि उसमें हर तरह की कैदियों को फैसिलिटी मिलेगी हेल्थ की। अभी तो फिलहाल मौके पे ये है कि वो लंबी बातें और लंबी कहानियाँ इनकी। इस वक्त खान साहब को जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उस ट्रीटमेंट की इन्होंने फैसिलिटी हमें देनी है। अगर ये नहीं देंगे प्रेशर बिल्डअप होगा, हम नहीं हिलने वाले, और हम ये करके दम लेंगे, और अगर ये नहीं करेंगे, ये एक और ज्यादती करेंगे, तो फिर ये जो जुल्म हो रहा है, फिर हमारे साथ जो हो रहा है, तो फिर ये जिस हद तक जा रहे हैं, तो कल फिर कहते हैं वो साइकिल है, लाइफ इज अ साइकिल, वो घूमता है, एक पहिया है, घूमेगा, फिर घूम के इन पे आ गया तो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर लेंगे। अच्छा, लास्टली अली अमीन साहब ये बताइएगा कि आप जब सीएम थे तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालबन ये बात की थी कि इमरान खान साहब को रिहा करवाने में बस एक बाल के बराबर चीज़ें रह गई हैं और खान साहब जल्द बाहर आ जाएंगे। उसके बाद क्या फासले बढ़ गए, खान साहब की रिहाई कहाँ पे रुकी, वो बाल कितना एक अब दूर है, या बाल से भी अब कब वक्फा रह गया है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, ये जब आप प्रेशर बिल्डअप करते हैं ना, तो आपका हर एक जो आप मार्च करते हैं या आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था, हर एक का, हर जलसे का, हर मार्च का, हर प्रोटेस्ट का, कि खान साहब की रिहाई हो जाए। उसमें अनफॉर्चुनेटली जो ऑब्जेक्टिव था उसके हम करीब पहुंच चुके थे, और खान साहब के जो अहकामात आए थे 25 को कि हम बैठ जाएं और उसके बाद कोई ऐसे मामला ऑब्जेक्टिव की तरफ हम आगे बढ़े, वो खान साहब के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाया, जिन वजूहत की वजह से भी नहीं हो पाया, तो वो हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। उसके बाद तो दोबारा जो है, इस तरह आप कह रहे हैं, प्रेशर भी अब उस तरह नहीं है, और ये अभी हमारी हालत है कि रिहाई से मुलाकात और फिर मुलाकात से अब इलाज, तो अब इन हालात में तो वो चीज़ जो है अभी कहीं है भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करती। और चूँकि मैं तो जब सीएम था तो पहले खान साहब ने खुद अनाउंस किया था कुछ लोगों का कि ये बात करेंगे, फिर खान साहब ने अनाउंस कर दिया कि कोई बात नहीं होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो लेकिन फिर मैंने खान साहब को जब मिला तो मैंने बताया कि खान साहब, मैं क्योंकि एक ऐसी पोजीशन पे हूँ कि मैं उस जगह पे बैठता हूँ जहाँ पे आपके लिए कंटेस्ट करना, पार्टी के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके पे कंटेस्ट करना, वर्कर के लिए आवाज़ उठाना, मेरा ये फ़र्क पड़ता है, और मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त दिया था कि मैं उधर खामोश बैठूँ, तो मैं फिर भी करूँगा आपके मना करने के बावजूद भी अपनी उस कैपेसिटी में चीफ मिनिस्टर। अब तो मैं हूँ नहीं, तो नहीं उस कैसे फार्म में मैं बैठता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
प्रेशर बिल्टअप होगा तो तभी ये बैठेंगे, बात करेंगे, और हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर हमारी टर्म एंड कंडीशंस होंगी, हमारा प्रेशर कम होगा फिर उनकी टर्म एंड कंडीशंस होंगी। तो ये तो सिंपल सा फार्मूला है, ज़िंदगी का फार्मूला है। जो डाढ़ा होता है उसकी बात वो मनवा लेता है और उसकी बात फिर आपको माननी ही पड़ती है। जो कमज़ोर होता है, ज़ाहिर बात है, वो फिर उसको डाढ़े का फैसला मानना पड़ता है, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है कि वो अपना फैसला उस पर मनवा नहीं सकता। तो अपर हैंड इज़ द बेटर हैंड। सियासी तरीके सर मीडिया में आ रहा है कि खान साहब को किसी तीसरे मुल्क शिफ्ट किया जाए, क्या ये इस मसले का हल है? और ऐसा कोई मुल्क अभी तक नज़र में लाया गया है कि कहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाए? देखिए जी, ये फैसला तो खान साहब ने करना है कि हमारा तो मकसद ये है कि खान साहब का इलाज हो जाए फ़ौरन। इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही एजेंडा है। बाकी तो हमारे हिसाब किताब चल रहे हैं, चलते रहेंगे कि खान साहब का जल्द से जल्द बेहतरीन फैसिलिटी देकर उनका वो इलाज किया जाए। अब उसके लिए पाकिस्तान में नहीं हो सकता, कहीं और हो सकता है, और उसके लिए बिसारी वाले फैसला खान साहब ने करना है कि वो उस पर राज़ी होते हैं या नहीं होते। लेकिन हमारा तो जो फैसला खान साहब का है वही फैसला हमारा है। सर, इस वक्त असलार वज़ीर साहब की जानब से सुहेल अफरीदी पर तनकीद की जा रही है कि कोई हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर नहीं आ रही। हम असलार वज़ीर PTI का जो रहनुमा है, लेकिन हमारी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी है हमारी, और जब इतनी पार्टी बड़ी हो जाती है, और आपको पता है हमारी पार्टी में जो है हमने ही लोगों को ये सिखाया कि जी आज़ादी राय, हमने ही बताया कि जी आप हर किस्म की बात करें, और इसलिए हमारी पार्टी में तरकीब ज़्यादा भी होती है, हर एक को इजाज़त भी है ये काम करने की। इतनी बड़ी पार्टी में मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। कोई अब देखे ना, वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। तो आप हर एक को तो मुतमईन कर नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं, और हमारा ईमान भी यही है कि इंसान कोशिश कर सकता है, बाकी कामयाबी तो ले लेता है। ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ है जितना भी है, इसकी मद्देनजर रखते हुए इमरान खान की रिहाई को देख रहे हैं आप? देखिए जी, फिलहाल तो मैंने बताया इस वक्त जो मकसद हमारा पहला है इस वक्त वो है कि हम ये खान साहब का जो ये सेहत का मसला है, आँख का मसला है, उसके ऊपर फ़ौरन से पहले इंतजाम करवा लें, और उसी के लिए हम इस वक्त बैठे हैं, और वही हमारी प्रायोरिटी है। अगर हम उसके साथ अभी लिंक करें रिहाई को, अदालतों में वो केसेस भी हैं, वो एक प्रोसेस है, तो वो मेरे ख्याल में 1 मिनट भी ज़ाया करना या 1 सेकंड भी इस वक्त ज़ाया करना इस मसले से इधर उधर मेरे ख्याल में ज़्यादती है। तो इस वक्त तो वही है, और बाकी ज़ाहिर बात है हमारी जो तहरीक है इमरान खान की रिहाई की, वो तो जारी व सारी है। सर आखिर में ये बताइएगा कि हुकूमती वज़रा की जानब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत के मतलब जो खबर गर्दिश कर रही हैं वो NRO लेने के लिए की जा रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं। यार बात ये है, तलाल चौधरी जिस तरह की बातें और इस तरह के बयान देता है, टू बी वेरी फ्रैंक, उसका अपना एक बयान किसी के बारे में उसे दूसरे बयान से मैच नहीं करता। अब उसके इस तरह की नॉनसेंस बात के ऊपर मैं पूरी हुकूमत के ऊपर बात करके ये कहूँ कि जी ये है या वो है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके बयान की इतनी हैसियत है, क्योंकि वो उसका एक इंडिविजुअल बयान है और उसके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है बातें करने का। तो वो ऐसा है कि मेरे ख्याल में उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। हमारा इस वक्त की फोकस है, और गवर्नमेंट से मैं अभी शहबाज शरीफ साहब से आपके तवज्जो से बात करूँगा कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं उस कैबिनेट का खुद हिस्सा था, और उसमें इमरान खान साहब डिसीजन मेकर थे उस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर, और उस कैबिनेट में नवाज शरीफ साहब के कैबिनेट ठीक थे, गलत थे, जो भी थे। आई ये बात तो इमरान खान ने फैसला दिया उस पर, और हम सब ने तायीद किया इस कैबिनेट कि आप इनको इलाज के लिए ले जाए, क्योंकि सेहत का अगर मसला है और ज़िंदगी का मसला है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और यही शहबाज शरीफ साहब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन ही इन चेयर ना हो, इन्हीं के 30 रुपये के स्टाम्प पे वो गए और दोबारा फिर नहीं आए। तो आज शहबाज शरीफ पास एक मौका है कि एक उस मयार के आदमी का कि उसने कोई पॉलिटिकल राइवलशिप या इस तरह की हरकत नहीं की, बल्कि एक ऐसा फैसला किया कि जो फैसला इंसानियत के हवाले से था, जो फैसला इखलाकी तौर पे ठीक था, और ऐसे कुर्सी में बैठ के ताकत आए तो वो उस मौके पर आपके ज़र्फ को शो करता है कि आपका ज़र्फ क्या है। ऐसे ज़र्फ वाले इंसान ने ज़र्फ दिखाया था, तो आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि आप वो एहसान उतारें और वही ज़र्फ का मुजाहरा करें, इससे आपका मयार ऊपर जाएगा। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि इसके लिए मुझे पता है, मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, कि इसके लिए पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं पूछ के बताऊँगा। इतनी पावर शहबाज शरीफ के पास है, उसी कैबिनेट के पास, कि वो इमरान खान के इलाज के मामले के ऊपर किसी ने पूछने की ज़रूरत भी नहीं है उसको, और इतना भी इख्तियार नहीं है कि अपना एक एहसान उतारने का भी इख्तियार नहीं है, तो मेरी कुर्सी को छोड़ लो, कोई और काम कर लो। ठीक है।